Okay, good evening, everyone. Parents and kids. Basically, the future of India is our young generation and kids. And that's why I have decided that whatever I have means I am knowing related to basically AI, artificial intelligence, the skill, which is the new skill, new technology, is there in the market. And every field is getting dominated. सारी fields, कोई भी ले लें हम education sector ले लें, medical ले लें, agriculture ले लें, everywhere AI is putting और showing dominance. तो वो स्किल को सीखना एक बहुत एसेंशियल पार्ट हो गया है लाइफ का हमारी. ओके, सो दैट्स व्हाई आई just decided that why not anybody is teaching our kids, because kids, the children are the future of country, any country. किसी भी कंट्री का जो फ्यूचर होता है वो यंग जनरेशन होती है हमेशा. जिस स्टेज पर हम हैं, वी आर ऑलरेडी लर्न सो मेनी थिंग्स एंड वी आर ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड एंड वी आर स्टिल कंट्रीब्यूटिंग टू आर इंडिया. बट the kids which are up, means those who are just in the growing stage, like 8 years old, 10 years old, 15 years old, they are basically known as what, like alpha generation or gen next. So this kind of skill is already being regulated in other countries, like we talk about Dubai, we talk about China, we talk about USA. मैं एक आपको एक वीडियो शो करता हूं, so that you come to know what are the things going on in the world, around the world. Just a minute, wait for few minutes. Just a minute. Let me share the screen. So whenever I am sharing the screen, I will ask whether my screen is visible to you or not. Is my screen visible now? Yes, participants can see my screen. Just a minute. Yes, sir. Yes. Okay. Everybody knows this great leader of USA. Okay, President Trump just signed this document is being signed by Donald Trump on 23rd of April. 23rd of April पर इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया है यूएसए में to teach AI in schools and train teachers as well, starting in kindergarten, means right from nursery and KG only. From kindergarten, that is from Montessori level, they are training their kids. I just request don't do not scribble on the screen, please. I just request. See, so President Trump signs the executive order. Just watch the video, then I will continue. Okay. Artificial intelligence education, sir. You've obviously done a lot in the artificial intelligence space already. The basic idea of this executive order is to ensure that we properly train the workforce of the future by ensuring that school children, young Americans are adequately trained in AI tools so that they can be competitive in the economy years from now into the future as AI becomes a bigger and bigger deal. That's a big deal because AI is where it seems to be at. We have literally trillions of dollars being invested in AI. And somebody today, a very smart person, said that AI is the way to the future. I don't know if that's right or not, but certainly very smart people are investing in it heavily. So he is signing the document that now from kindergarten only, the children will start learning about AI. So advancing artificial intelligence education for American youth. So why I showed you this video? See, I don't know when our government will take such kind of decision, because NEP new education policy was launched in 2020. 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई थी, बट स्टिल राइट नाउ दिस इज 2025, 2025 चल रहा है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज रिलेटेड, एनईपी रिलेटेड बुक्स जरूर लॉन्च हुई हैं, बट उसके पीछे जो मोटो था कि हमको लाइफ स्किल सिखानी है बच्चों को, लाइक we talk about digital skills, digital marketing, literacy skills, financial skills. Still, most of the schools are not following it.
वो लागू नहीं हो पा रही है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। उसके पीछे देयर आर मेनी रीजंस। अगर मैं उसके बारे में बात करना चाहूँ तो मोर देन 1 आवर निकल जाएगा। बट द थिंग इज दैट कि when our government will take initiative for NEP and when they will think about AI, कब वो AI के बारे में सोचेंगे? स्टिल देयर आर नो बुक्स, ओनली इन द कंप्यूटर थ्योरी आ जाता है आपको कि व्हाट इज एआई, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एआई, डिसएडवांटेजेस, यूजेस ऑफ एआई। थोड़ा बहुत कोडिंग आपको टीचर सिखा देता है स्कूल में, ओके। बट हेयर इन दीज सेशंस, बेसिकली इन समर कैंप्स, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू लर्न सो मच अबाउट एआई टूल्स, नॉट द थ्योरी। थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला हूं मैं, प्रैक्टिकल लर्निंग, उसको हमको कैसे हार्नेस करना है, द पोटेंशियल ऑफ एआई, ये मैं सिखाने वाला हूँ। एआई टूल्स बेसिकली रहेंगे। देन वी ऑफ कोर्स वी विल कम टू एनिमेशन पार्ट आल्सो, एनिमेटेड वीडियोस, वीडियो एडिटिंग एंड सम बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, so that after completion of course, and there are many other things which I am going to discuss throughout the month, and of course after the summer camps also the classes will be there. I will tell you the schedule also, but the motto behind it, that my kids, the kids of my nation should be skilled, उनकी स्किल पर मुझे काम करना है। एंड हमको कॉलेज तक वेट नहीं करना है कि कब हमारा 10th पूरा होगा, व्हेन वी विल पास 12th, एंड कब हम कॉलेज पास आउट करेंगे एंड देन वी विल थिंक कि हाँ अब जॉब ढूंढनी है या अब काम ढूंढना है कुछ। नो, गॉन आर दोज डेज कि पहले 10th पास करो, फिर 12th पास करो, फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, कॉलेज के साथ साथ एग्जाम दे दो, देन जॉब लगेगी, देन वी विल स्टार्ट अर्निंग। नो, आजकल 10th क्लास का बच्चा भी वेबसाइट बनाकर उसको सेल कर रहा है, डेट टू विदाउट कोडिंग। कोडिंग नहीं आती, इट्स फाइन, आती है तो अच्छी बात है। नहीं आती है, उसके बिना भी वेबसाइट डिजाइन हो रही है, एप्स डिजाइन हो रहे हैं, एंड दे आर सेलिंग इन मीन्स 5,000 10,000 पर वेबसाइट, 20,000 ऑल्सो दे आर चार्जिंग, एंड अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट वर्क। So basically, my focus that I should teach you the skills so that you can market yourself. आप अभी से ही, बचपन से ही सोच सको कि मुझे जाके ये कंपनी ओपन करनी है, कि मुझे इस नीश पर, नीश में आपको वर्ड बताता हूं मैं, इसकी पहले आपको स्पेलिंग लिख देता हूं चैट में, ओके। नीश, नीश का मतलब होता है एक आपका आइडिया, ओके। क्या आपका आइडिया, सपोज मेरा नीश है एआई टूल्स, मैं एआई सिखाता हूं बच्चों को या यंग प्रोफेशनल्स को, ठीक है, तो ये मेरा नीश है। somebody wants to give services in medical, तो वो उसका मेडिकल नीश हो गया। somebody wants to give services as lawyer, तो lawyer and law उसका नीश हो गया। because these skills will be applicable in all the niches. For example, if I will say कि आपको एक फ्लायर डिजाइन करना है अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, क्लियर। सपोज एनी वन ऑफ यू डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू मैन्युफैक्चर समथिंग, मैं कुछ मैन्युफैक्चर करने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट सोप, अगर किसी को सोप बनाना आता है और वो उसकी फैक्ट्री सेटअप करना चाहता है, तो व्हाट, ऑफ कोर्स स्पेस की जरूरत पड़ेगी, मनी लगेगा, बट उसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। तो वो स्किल्स मैं आपको इसी साल सिखा दूंगा कि हाउ टू मार्केट एनीथिंग, हाउ टू मार्केट योर सेल्फ, हाउ टू मार्केट योर प्रोडक्ट। आप उसको विदाउट इन्वेस्टमेंट, किसी की हेल्प, कोई भी सर्विस लिए बिना, आपके अंदर इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि यू कैन डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, वेदर इट इज रिलेटेड टू वेबसाइट डिजाइनिंग, anything related to marketing, anything you want to run some ads on Instagram, Facebook ads, Google ads, you want to open your Google, that's YouTube channel, how to make face video, faceless तो मैं सिखाऊंगा, how to record the videos, how to edit it, and how to upgrade your YouTube channel, so that you can decide from childhood कि आपको आगे जाके क्या करना है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमको सिर्फ जॉब के बारे में ही सोचना है। वाई कांट वी थिंक लाइक चाइनीज पीपल टू गिव जॉब्स? यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप इतना, आज की डेट में इतना स्टार्टअप्स, न्यू स्टार्टअप्स इंडिया में हो रहे, तो वाई कांट वी थिंक राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड डेज? तो दीज आर माई विजन एंड थॉट्स फॉर यू, जो मैं आपके अंदर इंस्टिल करूंगा बाय टीचिंग यू स्किल्स ओनली, नो अदर टॉक्स, ओनली आई विल टीच यू स्किल्स, कि बेटा ये स्किल्स सीख लो तो ये आपको आगे जाके काम आएंगी। एंड हाउ टू सेटअप योर ओन कंपनी, यस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप अपनी कैसे सेटअप कर सकते हो राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड डेज।
अगर आप 12th तक आ जाते हो और आपको ये स्किल्स आपको समझ में आती हैं और इसकी आप प्रैक्टिस करते हो डेली, तो यू विल बी एबल टू डू समथिंग ऑन योर ओन। आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की लेने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है टू रजिस्टर समथिंग, बट उसके पीछे की जो प्लानिंग होगी वो आप खुद कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ योर स्किल्स एंड ऑफ कोर्स द गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स एंड योर गुरुज। क्लियर? So these are my vision and thoughts for the summer camp. Now, what I am going to share, uh, how the classes will go on. Clear? From tomorrow, some of you have joined morning batch, some of you have joined evening batch. It's fine. That's why I have given you the flexibility. मैंने आपको एक flexibility दी है कि कोई भी बच्चा अगर किसी को समर कैंप, स्विमिंग, डांस, आर्ट कुछ भी उसको ज्वाइन करना है, तो वो सुबह वाला बैच अपने स्कूल में या कहीं पे भी ज्वाइन करना चाहता है कर ले, या शाम वाला कर ले। तो कहीं पे भी वो जाएगा तो एक ही वक्त जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि वो 24 आवर्स वहीं रहेगा। सो जो फ्लेक्सिबिलिटी हो वहां पर वो एडजस्ट कर ले, और आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, या तो आप मॉर्निंग में ज्वाइन कर लो बैच मेरा, या इवनिंग में ज्वाइन कर लो। तो मॉर्निंग बैच टाइमिंग इज 11 to 1 p.m. 11 a.m. से 1 p.m. तक चलेगा। एंड नीच अगर हम इवनिंग की बात करें तो इवनिंग बैच हमारा 5 p.m. to 7 p.m. चलेगा। ओके? इसमें अगर किसी को डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड, अदरवाइज इफ यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट तो प्लीज टाइप इन द चैट नो डाउट। टाइमिंग्स को लेकर अगर आपको कोई इशू नहीं है तो प्लीज राइट नो डाउट इन द चैट, एंड थोड़ा क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए। ओके? इफ यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट प्लीज राइट नो डाउट इन द चैट एवरीवन। देखो, जब भी अपनी क्लासेस चलेंगी हमको इंटरेक्टिव रखनी है। ओके? आपको अनम्यूट नहीं होना है। मैं जब भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, कोई भी आंसर मांगूंगा, आपको चैट में देना है। मैं कोई आपसे लेंदी आंसर्स नहीं मांगने वाला कि मुझे 3 लाइन 4 लाइन में आंसर बताओ। आपके वन वर्ड आंसर्स रहेंगे यस या नो में, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, देन उसको आपको चैट में लिख के भेजना है। देन एट द एंड ऑफ एवरी सेशन एवरी डे आई विल गिव यू 15 minutes। सपोज हमारी क्लास चल रही है 11 to 1 p.m., तो वी विल वाइंड अप आवर सेशन बाय 12:45, एंड 12:45 से 1 हम एक सेशन रख लेंगे छोटा सा उसी वक्त आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लास, की अब आप 15 मिनट में जो समझाया है उसको एक बार आप रिवाइज कर लो मेरे साथ और पूछ लो। और रिकॉर्डिंग्स तो हमेशा रहेंगी। मैंने अभी आपको ये सेशन भी रिकॉर्डिंग पे डाल दिया है। दोज मेंबर्स दोज हु हैव नॉट ज्वाइंड येट दे कैन सी द रिकॉर्डिंग्स कि क्या हमने डिस्कस किया। क्लियर? एंड आपको एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चों, जब भी आप मेरी क्लास में आओ तो बाकी सारी टेंशन छोड़कर आना। लाइफ में क्या चल रहा है देखो, एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन पर्सनल बिलोंगिंग्स एंड देयर पर्सनल लाइफ। बहुत सारी मतलब इन एवरी फैमिली, सबकी फैमिलीज में कुछ ना कुछ चीजें, कुछ कभी खुशी कभी गम, सारी चीजें इस तरह चल रही होती हैं। बट वेन यू विल सी द रिकॉर्डिंग्स और लाइव सेशंस, सारी चीजें भूल कर आना, बिकॉज एवरी डे यू विल लर्न समथिंग न्यू विच यू आर नॉट नोइंग। दिस इज माई प्रोमिस। जो चीजें आपको नहीं पता है मैं वो सिखाने वाला हूं, तो आपको वो इतने अच्छे से सीखनी है सो डैट यू कैन अपस्किल एंड अपग्रेड योर सेल्फ। ठीक है? तो सारी चीजें भुला कर आना, एंड एक कॉपी जरूर रखना हमेशा अपने पास डायरी नोट्स के लिए। एक अलग से एक प्रॉपर डायरी या नोटबुक बना ले, एंड उसमें सिर्फ जो मेरे क्लास के सेशंस हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ उसमें, बस। उसमें और कुछ मत लिखना। बाकी और क्या क्या लिखना होगा मैं आपको ऑन डेली बेसिस आई विल गाइड यू, बट शॉर्ट नोट्स जरूर बनाया करो वेन एवर समबडी इज टीचिंग यू एनीथिंग। मेरी क्लासेस अटेंड करो या स्कूल में कभी कुछ अटेंड करो तो यू शुड हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमें सब याद हो रहा है, हम सब दिमाग में रख लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, हम भूल जाते हैं कुछ समय बाद। सो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। भले ही आपके पास रिकॉर्डिंग्स लाइफ टाइम रहेंगी, बट फिर भी लिखने की आदत डालनी है आपको। ओके? सो जब तक हम लिखने की आदत नहीं डालेंगे तब तक हमारे को ग्रोथ नहीं होगी, ये भी यह चीज याद रखनी है। देन जब तक मैं आपको ना बोलूं अनम्यूट, सपोज आई एम आस्किंग समथिंग टू कनिष्क संगोई, तो आई विल टेल हिम टू अनम्यूट, देन ओनली अनम्यूट, अदरवाइज डोंट अनम्यूट। आपको अनम्यूट नहीं करना है। क्लियर? बिकॉज अदर पीपल गेट डिस्टर्ब। तो हमको क्लास की बहुत ही डिसेंसी बना के रखनी है। क्लियर? अब आपको रिकॉर्डिंग्स किस फॉर्म में मिलेंगी, अब मैं आपको बताता हूं कि मैं किस तरह से आपको किस प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्डिंग्स दूंगा, कहां से आपको मिलेंगी। अब आई एम जस्ट शोइंग यू। लेट मी शेयर द स्क्रीन।
जस्ट अ मिनट। See, you will get a share drive link, and in that Excel sheet will be there. Okay, Excel sheet will be there, and you will get the videos like this, link of videos like this. Topic आपके यहाँ पर लिखा होगा. My screen is visible to everyone, I think. अगर नहीं हो तो चैट में लिख देना, और अनम्यूट करके बोल सकता हो बच्चा कि उसको स्क्रीन नहीं दिख रही है. तो इसमें इस तरह से आपके टॉपिक्स और टॉपिक के सामने उसका लिंक आपको मिलेगा. सो ये गूगल शीट होगी, एंड ये गूगल शीट आपको सिर्फ एक ही जीमेल आईडी पर एक्सेस मिलेगा. उस जीमेल आईडी पर, जिस जीमेल आईडी को आपने गूगल फॉर्म में भरा है, उसके अलावा मैं एक्सेस नहीं दूंगा किसी भी सेकंड जीमेल आईडी पर. एक बच्चा है तो एक ही जीमेल आईडी का एक्सेस मिलेगा आपको. तो जब आप उस जीमेल आईडी पर, मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, और इस पेज की, इस एक्सेल शीट की, ये एक्सेल शीट नहीं होगी, दूसरी होगी. ये मेरे दूसरे मेंबर्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो मेरे से सीखते हैं एआई के बारे में. तो ये टॉपिक होता है उनका, और उस टॉपिक के आगे उसकी लिंक होती है यूट्यूब की. तो यूट्यूब चैनल का लिंक आपको यहीं पर मिलेगा, उस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग का. व्हेन यू विल क्लिक व्हेन यू विल क्लिक यू विल डायरेक्ट रीडायरेक्ट टू अ यूट्यूब चैनल. क्लियर? तो यहां पर आपको मेरी रिकॉर्डिंग इस तरह से मिलेंगी. आपको मेरा यूट्यूब चैनल, माई यूट्यूब चैनल, यू कैन राइट इन द चैट यस और नो. ये यूट्यूब चैनल अब दिख रहा है आपको? टाइप यस और नो इन द चैट. ओके, कार्तिकेय सेइंग यस. सो अगेन आई एम सेइंग, आपको एक एक्सेल शीट का लिंक का एक्सेस मिलेगा. आपको उस टॉपिक के आगे लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक करना है. देन यू विल रीडायरेक्ट टू द यूट्यूब चैनल. नाउ यहां पर एक स्ट्रिक्ट रूल है. वैसे तो मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, क्लियर, कि ये उसी को ओपन होगा जिस जीमेल आईडी पे आपको एक्सेस होगा, एंड यू कैन नॉट शेयर दीज लिंक्स टू एनीवन एल्स. क्योंकि अगर आपने इसको, मैंने यहां पर इंटीग्रेट लगा रखा है, ऑटोमेशन एआई से लगा रखा है. अगर आप ये लिंक किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो मुझे पता लगेगा, मेरे पास नोटिफिकेशंस आएंगे कि हु आर ओपनिंग दीज लिंक्स फ्रॉम विच ईमेल आईडी. देन जिसने भी शेयर किया होगा वो ईमेल आईडी को यहां से ब्लॉक कर दिया जाएगा फॉर एवर. देन उस बच्चे के पास बस अब एक ही चांस बचेगा सीखने का, लाइव सेशंस. क्लियर? उस बच्चे को रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी. सो इन फैमिली यू कैन वॉच, नो प्रॉब्लम. बट इफ यू आर इवन शेयरिंग टू योर रिलेटिव्स, मुझे पता लग जाएगा कि आपने लिंक यहां से यहां शेयर करी है, वो लिंक मैं, आपकी वो जीमेल आईडी मैं ब्लॉक कर दूंगा. क्लियर? तो आपको रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी, आपको फिर डेली लाइव सेशंस ही पढ़ने पड़ेंगे. तो वॉट एवर आई एम प्रोमिसिंग टू यू, that I am definitely I am going to follow it, and whatever I am instructing you, that also I am going to follow. जो मैं बता रहा हूं वो सब आपको दिमाग में बिठाना है. इफ यू हैव पेड देन यू शुड गेट द एडवांटेज, सिंपल एज इट इज. क्लियर? हाँ, आपका रियल ब्रदर है, डेफिनेटली यू कैन शेयर एनीथिंग, एक सेम मोबाइल से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट डू नॉट सर्कुलेट. क्लियर? सर्कुलेट करोगे मेरे पास मैसेजेस आएंगे, एंड व्यूअर से भी मुझे पता लग जाएगा कि किस किसने देखा है. यूट्यूब चैनल पे सब डिटेल्स आती हैं. क्लियर? क्योंकि मैंने यूट्यूब का भी पेड वर्जन लिया हुआ है, उस पर सारे लोगों के नाम आते हैं, डेट हु आर वॉचिंग. ओके, नाउ ये तो हुई कि आपको रिकॉर्डिंग्स कैसे मिलेंगी. अब बात आती है कि हमको क्या क्या चीजें हमारे पास रेडी रहनी चाहिए टू अटेंड द सेशन. नोटबुक आई टोल्ड यू कि आपको नोटबुक अपने पास रखनी है, एक पेन पेंसिल आप जो भी रखना चाहे रखें. एंड क्योंकि सेशन 2 आवर्स के होंगे, एंड यू नो दैट समर सीजन इज गोइंग ऑन, तो आपका जो भी फूड, लिटिल बिट स्नैक्स एंड वाटर और जूस शुड बी रेडी. इन बिटवीन आप क्लास के बीच में उठ के ना जाएं वीडियो ऑफ करके, बिकॉज एवरी सिंगल सेकेंड, एवरी सिंगल मिनट इज इंपॉर्टेंट. क्लियर? तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है.
आप पहले से अपनी सारी प्रिपरेशन करके रखो बगल में, एंड यू कैन हैव इन बिटवीन, आई हैव नो इश्यूज। आपको बीच में वाटर पीना है या कुछ स्नैक्स मंच करना, मंचिंग करना है, आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। बट कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास सो दैट यू कैन लर्न प्रॉपरली, एंड आपको मजा आना चाहिए बेसिकली। क्लियर? व्हेन यू आर लर्निंग, एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको उसी दिन करना है, एंड नेक्स्ट डे तक आपको वो प्रोजेक्ट्स, जो भी आपको प्रोजेक्ट्स या होमवर्क मिलेगा, वो आपको ग्रुप में ही शेयर करना है, जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं। मैं अलग से अभी कोई भी गूगल क्लासरूम कुछ नहीं बना रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा काम बढ़ जाएगा आप लोग का भी, कि आपको पहले एक शीट से आपको लिंक से रिकॉर्डिंग्स देखनी है, देन आप अपना काम करोगे, देन उसको गूगल क्लासरूम में अपलोड करोगे। नो, आप ग्रुप में ही शेयर कीजिए अपना प्रोजेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? आई विल चेक देन एंड देयर ओनली, एंड अदर पीपल, दोज हु आर इन द ग्रुप, दे विल ऑल्सो गेट एनकरेज बाय यू कि आपका क्या इनोवेशन हुआ है। जो आज मैं सिखाऊंगा, तो उसको आज आप बना के दिखाना मेरे को। मैं आज आपको ब्लिस्टर पैकिंग सिखाऊंगा। क्लियर? ब्लिस्टर पैकिंग सिखाऊंगा आपको कि उसकी ब्लिस्टर पैकिंग, यू नो ना, कि जैसे वो रिमोट के सेल आते हैं, वो सेल उसमें एकदम वैक्यूम पैक रहते हैं, तो उस टाइप की मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं ऑफ आर प्रोडक्ट, दैट आई विल टीच यू टुडे। एंड अब मैं शेयर करने जा रहा हूं अपनी पीपीटी की लिटिल बिट थ्योरी आई विल टीच यू नाउ। बेसिकली द डेमो सेशन इज बीइंग स्टार्टेड। मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपको डेमो सेशन, सो दैट आपको पता लग जाए कि क्या क्या किस तरह से क्लासेस हमारी चलेंगी। क्लियर? सो लेट मी शेयर द स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। My screen is visible to everyone. Participants can see the screen. Now, artificial intelligence technology. Okay. Okay. Huh. The company name is Alpha Growth Village. Everybody knows that. My company name is Alpha Growth Village Private Limited. It is registered, and we deals in basically artificial intelligence. Of course, some designing work through Canva and digital literacy. But main niche is artificial intelligence, and that too tools, थ्योरी कम, टूल्स ज्यादा, क्योंकि वही काम आने वाले हैं लाइफ में आगे। बट एआई होता क्या है बेसिकली? जब हमने कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किया, व्हेन आवर टीचर्स स्टार्टेड टीचिंग कंप्यूटर, तो उन्होंने हमको एक चीज बताई थी कि हम जो इनपुट देंगे वो आउटपुट निकल के स्क्रीन के ऊपर आएगा। क्लियर? बट एआई में क्या होता है? एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेसिकली दैट can simulate with human intelligence in machines, and it can think, learn and make decisions like humans. ये एक डिफरेंस है कंप्यूटर और एआई प्लेटफॉर्म में। एआई चैटबॉट्स, एआई टूल्स प्री ट्रेन्ड होते हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, एंड दैट्स व्हाई दे कैन थिंक लाइक ह्यूमन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक चैटबॉट की बात करूं, दैट इज चैट जीपीटी, उसको पहले ट्रेन किया गया है, तो इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर। ठीक है? वो एक चैटबॉट है, वो एक ओपन एआई प्लेटफॉर्म है। क्लियर? तो उसको पहले ट्रेन किया गया। ट्रेन कैसे किया गया? उसमें पूरा जितना भी वर्ल्ड में डाटा था, उसके अंदर पहले उसको इनपुट किया गया है, उसको ट्रेनिंग दी गई है, सो दैट वॉट एवर वी आर आस्किंग, इट इज गिविंग द आंसर्स इंस्टेंटली विद इन नो सेकेंड्स। माइक्रो सेकेंड से भी नीचे जाकर वो हमको सारे आंसर्स देता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, some tools are there. For example, how to generate an image, तो एक वो टूल से जनरेट होता है, तब वो चैटबॉट नहीं है, दैट इज टूल। तो अभी जब मैं आपको जनरेट करके बताऊंगा, देन यू कैन सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैटबॉट एंड एआई टूल। चैटबॉट वो होता है जैसे चैट जीपीटी, डीप सीक, ग्रोक 3, ये सब चैटबॉट है जिसमें आप इंस्ट्रक्शन देते हो और फटाफट आपके पास आंसर आता है। अब टूल्स क्या होते हैं? जैसे इमेज जनरेशन करना, वॉइस जनरेट करना, वीडियो बनाना, तो ये एआई टूल से होता है। क्लियर? एंड these AI, this AI technology can recognize images and patterns and make decisions on their own. And this AI technology is transforming every industry, whether it is related to education, healthcare, finance, banking, manufacturing. Everywhere they are transforming the industries. So that is why it is very essential to learn for every citizen of India. मुझे वर्ल्ड का लेना देना नहीं है, वर्ल्ड में बाकी कंट्रीज के बच्चे क्या कर रहे हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी कंट्री के बच्चों को
समझाना है और सिखाना है कि ये चीज सीखनी क्यों जरूरी है। आप सी हम वापस आते हैं, मैं थोड़ा सा आपसे इंटरेक्ट करता हूं एक क्वेश्चन पर। सब बताना मुझे चैट में कि हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग मोबाइल एंड लैपटॉप डेली। जस्ट टाइप आई इन द चैट, कैपिटल आई। हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग मोबाइल एंड लैपटॉप और आईपैड, वॉट एवर द गैजेट्स आर देयर, everybody is using. Okay, Ojas is saying no, means Ojas you are using but not daily, I think. Okay, so and now everybody is saying yes, everyone is using mobile and this gadgets. But अगर ये जो स्क्रीन टाइम हम सिर्फ रील्स देखने में ना लगाएं, खुद की प्रोडक्टिविटी पे हमको लगाना है बेसिकली। क्लियर? सो हमको क्या करना है, जब हम आपको ये सब चीजें सिखाएंगे देन आपको इम्प्लीमेंट करनी है वो चीजें। क्लियर? व्हेन यू विल इम्प्लीमेंट, तो आपका जो स्क्रीन टाइम है, जो आपका स्क्रीन टाइम है वो एक बेनिफिट और प्रॉफिटेबल स्क्रीन टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? ये चीज आपको समझनी है कि वेन एवर यू आर यूजिंग योर गैजेट्स, ओके, फॉर enjoyment, for watching movies, for playing some games, it is fine, but it should not exceed more than 30 minutes. क्लियर? जो आपकी स्किल्स को मैं ट्रेन करूंगा उस पर आपको ज्यादा स्पेंड करना है टाइम। एंड डू नॉट मिस यूज इट, कि आप जो स्किल्स सीख रहे हैं उसके बहाने अपने पेरेंट्स से गैजेट्स ले रहे हैं और यू आर नॉट यूजिंग दैट थिंग प्रॉपरली। तो जो सिखाया जा रहा है उसी को आप ज्यादा यूज करें, उसी पर आप काम करें। बिकॉज अगर आपको एक सीईओ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट अगर अपना बनाना है, तो यू नीड टू इम्प्लीमेंट। मैं सिखा तो जरूर दूंगा, बट उसको इम्प्लीमेंट करना वो आपका काम रहेगा। अब आप चाहे उस दिन करो, इफ यू आर बिजी देन वॉच द रिकॉर्डिंग एंड देन इम्प्लीमेंट, बट डू इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट जरूर करना, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा होता जाएगा एंड यू विल फील बर्डन समटाइम्स कि यार वो पहले वाले सेशन का तो मैंने इंप्लीमेंट किया नहीं, अब ये एक और पढ़ा दिया सर ने। क्योंकि क्लासेस विल बी डेली, क्लासेस विल बी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे एंड संडे विल बी डाउट सेशन, अगर आपके हैं तो। अदरवाइज यू कैन आस्क द डाउट ऑन चैट, पर्सनल विंडो पे आप मुझे डाउट्स भेज सकते हो। क्लियर? सो डाउट्स अगर आपके कभी भी आते हैं तो आप मुझसे पर्सनल विंडो पे पूछ लो, एडमिन में जाकर। एंड प्रोजेक्ट्स के लिए मैं थोड़ी देर के लिए आपके कुछ आवर्स में आपका ग्रुप ओपन करूंगा, तो आप उस वक्त अपने प्रोजेक्ट्स को आप अपना वहां पे पोस्ट कर सकते हो। बट डू नॉट सेंड एनी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेजेस। बी प्रोफेशनल। यस किड्स, व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग एंड डूइंग समथिंग, तो आपको प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है। मैं बहुत बड़ा वर्ड बोल रहा हूँ आपके बच्चों के लिए, बट ये चीज आपको अभी से सीखनी है कि हाउ टू मेंटेन द प्रोफेशनलिज्म राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। ये चीजें भी आपको साथ साथ मैं सिखाऊंगा। नो गुड मॉर्निंग, नो गुड नाइट, नथिंग, नो विश ऑन एनी ऑफ द फेस्टिवल, सिर्फ काम की बात। क्लियर? एंड नो बडी विल डू पर्सनल मैसेज टू एनीवन। कोई भी किसी को पर्सनल मैसेजेस भी नहीं करेगा। हाँ, अगर वो आपको ऑलरेडी जानता है देन यू कैन कम्युनिकेट, आई एम नॉट हैविंग एनी इश्यू। और इफ एनी पेरेंट permits you to talk on, means on this project basis, on project work, then you can talk. Otherwise please do not connect anyone, do not disturb others life. Simple. Again I am saying be professional. I know you are kid, but you need to maintain this means professionalism. Now अब सबने तो ये सीखा कि एआई क्या है, बट व्हाट इज जनरेटिव एआई? ये वर्ड क्या है? दिस जनरेटिव एआई क्या होता है? सी, जनरेटिव का एआई का मतलब यही है कि ये कुछ चीजें जनरेट करेगा। क्लियर? वेदर इट इज चैटबॉट और वेदर इट इज एनी एआई टूल। क्या क्या जनरेट करता है? टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, म्यूजिक एंड इवन कोडिंग ऑल्सो। जो बोनस मैंने सबको कल अनाउंस किया है, दैट इज कैनवा प्रो for 1 year subscription, that is free. So from that also you can generate many things, everything, text, images, video, music and even coding भी आप उससे कर सकते हैं। because this Canva Pro 2.0 launch हुआ है recently 10 days back. So many new features are there and you guys are lucky to have it free of cost. Of course you enrolled in the program,
And when you talk about the costing of Canva Pro subscription, it comes around 4,000 to 5,000 1 year. पर ईयर का जो खर्चा आता है वो कैनवा प्रो का लेने का, डेट इज कमिंग 4,000 टू 5,000। यू कैन चेक ऑन द वेबसाइट, क्योंकि अभी तक मैंने आपको अभी दिया नहीं है। आज मैं वही बताऊंगा कि आपको वो कैसे मिलने वाला है। क्लियर? तो उसका जो कॉस्ट है वो आपका जीरो कर दिया है मैंने, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने एक एजुकेशन पैनल लिया है। मैं आपको पूरा क्लियर करना चाहता हूं कि मैंने एक टीम पैनल लिया है जिसके अंदर मैं कुछ मेंबर्स को ज्वाइन करवा सकता हूं। जितने फीचर्स मैं यूज कर सकता हूं उतने फीचर्स आप यूज कर सकते हैं। एंड सबके प्रोजेक्ट प्राइवेट रहेंगे, कोई किसी के प्रोजेक्ट्स को नहीं देख सकता। जो ओजस जनरेट कर रहा है, जो मान्य जनरेट कर रही है, वो ओजस नहीं देख सकता, और ना मैं देख सकता हूं, बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ दैट पैनल। क्लियर? बट आपस में टीम मेंबर्स नहीं देख सकते किसी का भी। क्लियर? कोई भी प्रोजेक्ट आप किसी का कॉपी नहीं कर सकते, तो आपको खुद से ही सारी चीजें बनानी है, खुद से ही सारी स्किल्स पर काम करना है। क्लियर? सो दिस जनरेटिव एआई इज क्लियर, इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ व्हाट इज चैट जीपीटी? चैट जीपीटी का फुल फॉर्म मैं बता दूं, इट इज, चैट तो मतलब सबको पता है, जीपीटी फुल फॉर्म इज जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। सेशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि जीपीटी का मतलब होता है व्हाट? प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ये एक ट्रांसफॉर्मर है जिसको कि प्री ट्रेन किया गया है, ऑफ कोर्स बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। उन्होंने इस पे दिमाग लगाया, एंड इसकी प्रोफेसी अराउंड 40 इयर्स बैक हुई थी, 1979 में। क्लियर? तब ऐसा बोला जा रहा था कि ये टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया जाएगा। बट वो आई कब? 2021 2022 में लॉन्च हुई, एंड नाउ वो बहुत ही एक्सपैंड हो रही है, बिकॉज चैट जीपीटी आया, उसके बाद डीप सीक आया, चाइना ने लॉन्च किया, एंड एलोन मस्क ने लॉन्च किया ग्रोक 3। मैं अभी सारे आपको चैटबॉट्स दिखाऊंगा और सबके आपको फंक्शंस भी दिखाऊंगा कि कौन किससे कितना अलग है। क्लियर? सो दैट्स द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी, दैट इज जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, और चैट उसके पीछे नॉर्मल है। एंड इसमें एक और क्वालिटी है कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसको प्री ट्रेन जरूर किया गया है, बट नाउ दिस ट्रांसफॉर्मर, दिस चैटबॉट इज बीइंग यूज्ड बाय ऑल द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। हर कोई चैट जीपीटी यूज करता है, इवन a child of 8 year old or 6 year old, those who are able to operate the mobile, उनको चैट जीपीटी यूज करना आने लगा है, कि उनको कोई भी चीज पूछनी है तो कैन यूज। तो क्या होता है, ये हर कोई उसमें डाटा डाल रहा है, उसके अंदर कोई भी चीज पूछी जाती है, लिखी जाती है, टाइप की जाती है, और एक एंटर करते हैं अपन, हिट एंटर बटन, तो वो डाटा उसके अंदर चला जाता है। फिर वो उसको अपने आप फिर से ट्रेन करता है। जो न्यू डाटा उसके पास मिल रहा है वो ये सेल्फ ट्रेन अपने आप को करता है। क्लियर? ये भी इसकी एक खासियत है, दिस इज द मेन फीचर। जो डाटा ऑलरेडी ट्रेन किया है वो तो है ही, बट जो न्यू डाटा हम लोग डेली उसके पास दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसको सेल्फ ट्रेन भी करता है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दीज चैटबॉट्स। नाउ व्हाट आर प्रॉम्प्ट्स? अब ये चीज बहुत समझना बहुत ही जरूरी है, प्रॉम्प्ट्स को समझना। सी, कभी भी अगर आपको लगे किसी भी सेशन में बच्चों की मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं, या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो चैट में लिख देना प्लीज सर गो स्लो। क्लियर? आप चैट में क्या लिखोगे सब? किसी को भी प्रॉब्लम आ रही हो कि सर प्लीज गो स्लो, तो मैं चैट में पढ़ लूंगा, आप बस इतना लिख देना। क्लियर? तो मैं अपनी स्पीड को धीरे कर लूंगा। बट आई होप अभी तक सबको समझ में आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा फ्लो में चल रहा हूं अभी। बट क्लासेस थोड़ी सी और धीरे होंगी, इससे भी धीरे होंगी और इलेबोरेटिव होंगी। क्लियर? सो डैट हर एज का बच्चा समझ पाए ये सिंपल से सिंपल थिंग्स। इसलिए मैं आज आपके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। अब प्रॉम्प्ट्स का मतलब होता है एआई की लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन। जो हम इंस्ट्रक्शंस देंगे उसको हम प्रॉम्प्ट्स बोलेंगे हमेशा। तो मैं आपको इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्किंग करवाने वाला हूं, दैट हाउ टू राइट अ प्रॉपर प्रॉम्प्ट। किस तरह आप एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट को लिख सकते हैं और कितना आपको लिखना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, आपको एक प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा। क्लियर? तो प्रॉम्प्ट्स का मतलब होता है जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे किसी भी एआई मॉडल को, लाइक चैट जीपीटी, डीप सीक और ग्रोक 3। क्लियर? Okay, bonuses I have already told you. Canva Pro for 1 year to everyone. Okay, the second bonus is ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होगा फिल्मोरा 13 और 14, जो कि आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा 90% डिस्काउंट पर। क्लियर? थ्रू अ सेलर, वो आपको बता दिया जाएगा जब उसकी जरूरत होगी। अभी स्टार्टिंग में कोई जरूरत नहीं है खरीदने की,
अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीजें सिखाऊंगा जो आप फ्री में कर सकते हैं, क्लियर। बट वेन आई विल टेल यू टू बाय दिस, देन आपको ये 90% और 95% डिस्काउंट पे आपको मिलेगा। इसका भी कुछ ईयरली चार्ज 5,000 6,000 आता है, वो आपको कुछ नहीं देना है। आई विल टेल यू हाउ टू बाय दैट, क्लियर। दिस वॉज अ सेकेंड बोनस, एंड थर्ड बोनस इज दैट आई विल गिव यू 10,000 प्रॉम्प्ट्स। जो मैंने प्रॉम्प्ट्स दिए हैं आपको, बताए हैं, मैं आपको हर एक फील्ड के प्रॉम्प्ट्स बताऊंगा, सो डैट आप किसी भी टॉपिक पर कुछ भी अगर आप सर्च करना चाहते हो तो उस प्रॉम्प्ट को बस कॉपी पेस्ट करना है, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा ज्यादा, क्लियर। उसको बस कॉपी पेस्ट करो एंड द रिजल्ट विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। सो दीज काइंड ऑफ बोनसेस आई विल गिव यू नाउ एंड देन। जैसे जैसे मेरे पास आते जाएंगे, मेरे को लगेगा कि अब ये आपको देना चाहिए, देन आई विल अनाउंस इन द सेशंस ओनली, क्लियर। ऑफ कोर्स फिल्मोरा हमको वीडियो एडिटिंग के लगेगा, क्योंकि इस लेवल तक की वीडियो एडिटिंग आपको सिखाने वाला हूं मैं। नॉर्मल सिखाएंगे जरूर, कैनवा से भी वीडियो थोड़ी बहुत हो जाती है, बन जाती है, बट इफेक्ट्स कैसे डालने हैं उसके अंदर। मैंने कुछ डाली हैं वीडियोस ग्रुप में, तो आपने देखा होगा। तो वॉट एवर आई एम डूइंग, दैट आई एम डूइंग विद द फिल्मोरा ओनली, क्लियर। एंड ऑफ कोर्स वन मोर थिंग, कैनवा तो मैंने आपको 1 ईयर के लिए दिया है, बट ये जो मैं अवेलेबल कराऊंगा 90% डिस्काउंट में, वो आपका लाइफ टाइम रहेगा। इट इज ओनली वन टाइम, तो इट इज कॉस्टिंग अराउंड 400 समथिंग रुपीज ओनली, एंड दैट टू लाइफ टाइम, क्लियर। तो वो सॉफ्टवेयर आपको संभाल के रखना है, उसको अपडेट नहीं करना कभी भी। कभी भी अपडेट का ऑप्शन है, उसको अपडेट मत करना, तो आपका वो एज इट इज चलता रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा कभी भी, क्लियर। सो दैट्स द अनदर थिंग। ओके, थैंक्स। आयुष्मान इज सेइंग थैंक्स, ग्रेट। जैसे जैसे देखो, मेरा बस मेन मोटो ये है, क्योंकि मैं इस फील्ड में 1 साल से हूं, तो मुझे कैसे आपको एकदम एकदम इकोनॉमिकल चीजें आपके लिए अवेलेबल करानी है, उसके लिए मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। जो भी मैं चीज सिखा रहा हूं उसका मैं पहले आपको उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताऊंगा, एंड हाउ यू कैन क्रैक दैट इकोनॉमिकली, सो डैट। देखो बेटा, एक चीज दिमाग रखना, एक चीज और बिठा लो। अगर ग्रो करना है लाइफ में, अगर सीईओ माइंड या डायरेक्टर माइंड अगर अपना माइंडसेट बनाना है, अगर अपनी कंपनी खड़ी करनी है, तो एक चीज याद रखना हमेशा लाइफ में, हर चीज फ्री नहीं आती है। अच्छी चीजें खासकर, गुड थिंग्स नेवर कम्स फॉर फ्री। ये चीज हमेशा दिमाग में बिठा लो आज से ही। अगर सोचोगे हर चीज हमको लाइफ में फ्री मिल जाए, बिना मेहनत के मिल जाए, ग्रोथ नहीं होगी, ये याद रखना हमेशा, क्लियर। बट मैं आपके पीछे हमेशा खड़ा रहूंगा कि आपको मैं जितना परसेंटेज डिस्काउंट आपको दिलवा पाऊं एक सेलर से। एंड उसमें आप बिल्कुल ये मत सोचना कि उसमें मेरा कोई भी उसमें ऐड होगा प्रॉफिट वगैरह, मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे चाहिए होता तो मैं आपको कैनवा भी कुछ चार्ज करके लेता, बट मुझे नहीं चाहिए। मेरा मिशन, अगेन आई एम सेइंग, मैं आपको आगे वाली पीपीटीज में बताऊंगा कि मेरा विजन एक्चुअल में क्या है, वो आपको अभी मैं आगे आने वाली पीपीटीज में क्लियर करने वाला हूं, देन यू विल कम टू नो एवरीथिंग, क्लियर। तो अब विजन की तरफ चलते हैं। दिस इज माई कंपनी अल्फा ग्रोथ विलेज प्राइवेट लिमिटेड। मैं सिखाता हूं एआई टूल्स एंड हाउ यू कैन स्टैंड आउट ऑन सोशल मीडिया, क्लियर। एंड आई एम ऑन अ मिशन टू एडुकेट यंग किड्स, टीन्स एंड एडल्ट्स अबाउट एआई टेक्नोलॉजी एंड मेक देम अवेयर अबाउट एक्चुअल यूसेज ऑफ एआई। एक्चुअल यूसेज कैसे करना है, चैट जीपीटी सबको पता है, बट उसका एक्चुअल यूसेज क्या है वो नहीं पता अभी भी सबको। आज मैं सेशन में आपको बताऊंगा कि उसका एक्चुअल यूजेस क्या होते हैं, क्लियर। एंड दिस इज माई विजन। देखो, हमारे पास इन इंडिया एवरी में देर आर सो मेनी कैटेगरीज ऑफ फैमिलीज। कोई कोई रिच है, कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर मिडिल क्लास भी है। बट मेरा एम है कि मेरी सर्विसेज हर एक चाइल्ड तक पहुंचनी चाहिए, सो डैट वो अपने घर बैठे अपने आप को इतना स्किल कर ले कि उसको कभी ये ना सोचना पड़े कि अब मैं लाइफ में करूं तो क्या करूं। मैंने डिग्री तो कर ली, मैंने पढ़ तो सब कुछ लिया, 90% बना लिया, बट मेरे पास काम नहीं है। अरे काम क्यों नहीं, अगर स्किल होगी तो काम आपको घर बैठे मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा। वो भी चीजें मैं बताऊंगा आपको, बट पेशेंस रखना। 1 महीने में सीखो पहले, उसके बाद इंप्लीमेंट करो, धीरे धीरे योर ग्रोथ विल गो ऑन, धीरे धीरे आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। और एज डजेंट मैटर, अगर एज मैटर कर रही होती तो आपने 3 दिन पहले आईपीएल का एक मैच देखा है जिसमें 14 ईयर एक बच्चे ने सेंचुरी मारी है 35 बॉल्स पे, सबको पता है, क्लियर। तो एज डजेंट मैटर टू अचीव समथिंग। गट्स होने चाहिए, अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जब कोरोना चल रहा था, दैट बॉय
सूर्यवंशी वॉज डूइंग प्रैक्टिस ऑन द टेरिस ऑफ होम। वो कोरोना में छत पर जाकर अपने प्रैक्टिस करता था, डिटर्मिनेशन था उसके अंदर। क्लियर? सो दीज आर सम लेजेंड्स जिनसे हमको सीखना पड़ेगा और हमको मोटिवेट होना पड़ेगा, एंड वी कैन लर्न लॉट ऑफ फ्रॉम देयर लाइफ स्टोरीज। एंड स्पेशली मेरा फोकस यहां पर है कि हर एक बच्चे को, वेदर इट इज मिडिल क्लास फैमिली एंड लोअर, एंड माई प्रोमिस, जो मेरा प्राइस है 799, ये कभी इंक्रीज नहीं होगा। दिस विल नॉट इंक्रीज। मैं मई के बाद में भी आपको कुछ क्लासेस के प्रोग्राम्स बताऊंगा, उसमें भी प्राइजेस कभी ऊपर नहीं जाएगा। नीचे जरूर जा सकता है बट ऊपर नहीं जाएगा। दिस इज माई प्रोमिस टू यू, सो दैट एवरी चाइल्ड शुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न राइट फ्रॉम होम। अब देखो, इसमें पेरेंट्स भी ऑफकोर्स सेशंस में हम आपके साथ बैठे हुए हैं, वो इस चीज को समझे। चाइना ने डिसीजन ले लिया अपने किड्स को सिखाने का स्कूल्स में। यूएसए ने ले लिया कि वो अपने किंडरगार्टन से सिखाएगा। चाइना ने बोला कि हम 1 सितंबर से 6 ईयर ओल्ड बच्चे को हम सिखाना स्टार्ट करेंगे, 6 ईयर ऑनवर्ड। 6 साल के बच्चे से ऊपर, जो 6 साल का हो चुका है और या उससे ऊपर है, उनको हम ये सारी टेक्नोलॉजी को हम इसके बारे में हम सिखाएंगे, सो डैट हमारा बच्चा इस कंट्री की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर पाए और उसमें ऑफकोर्स उनकी कंट्री को पावरफुल बन पाए। ये स्किल सीखने से और कुछ भी नहीं है। हमारी कंट्री का यूथ पावरफुल होता है एंड दे कैन अप्लाई योर ब्रेन। मैं आज भी कहता हूं, अभी सेशन में बोलता हूं एंड एक्सेप्ट करता हूं कि ये जो बच्चे बैठे हैं इधर ऑनलाइन, इनका दिमाग मेरे से ज्यादा तेज चलेगा बाद में। ये जो आज की जनरेशन है, डेट इज हम बोले अल्फा जनरेशन और व्हाट जेनजी बोलते हैं जिन्हें हमें, जिनको हम, उनका दिमाग हम एडल्ट से भी तेज चलता है। तो जब ये स्किल्स मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे आइडियाज आने लगेंगे कि अब मैं ये करूं, अब वो करूं। एंड एक चीज और सीखने वाली है यहां पर, मैं एक शेयर करूंगा आपसे कि आपने एक छोटी सी कंट्री सुनी होगी, इसराइल। क्लियर? वो अगर आप उसको मैप में देखोगे, वर्ल्ड मैप में, वो आपको इंडिया से भी छोटी दिखेगी। आपको इवन लेंस लगा के देखना पड़ेगा, जूम करके, कि वो कंट्री कहाँ है। बट उस कंट्री की टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है कि नो बडी कैन अटैक ऑन देयर कंट्री। करता भी है तो उसकी वो जवाब प्रॉपर दे देते हैं, उनकी मिसाइल्स को रोक देते हैं। अगर हर एक बच्चा, हर एक पेरेंट अगर न्यूज देखता है तो ये पिछले लास्ट 2 इयर्स में हमने खुद लाइव देखा है। वाई? वो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी में चिल्ड्रन के ऊपर इन्वेस्ट किया है। हर एक घर में हर एक बच्चे को सर्विस देना जरूरी है फोर्सेस में, एंड वहीं पर वो उनको ट्रेन करते हैं थ्रू दीज टेक्नोलॉजी। तो वॉट एवर द न्यू टेक्नोलॉजी इज कमिंग, इसको हमको सीखना चाहिए। उसके बारे में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इट विल रिप्लेस अस। नो, जो नहीं सीखेगा वो रिप्लेस होता जाएगा धीरे धीरे। क्लियर? बट आई एम पॉजिटिव, आई एम वेरी मच पॉजिटिव कि मेरी ये सारी चीजें हर एक बच्चे तक पहुंचेंगी। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू विल लर्न, यू विल आल्सो शेयर। सो एवरी वन ऑफ us and of course the citizens of India will learn by me or some other tutors or some other those who are teaching, they can learn from there also, but everybody should learn so that it will it will help in country's progress। अगर मेरी इंटेलिजेंस, इंडिया की इंटेलिजेंस अगर इतनी स्ट्रांग होती तो पहलगांव में जो हुआ, जम्मू कश्मीर में जो हुआ, वो नहीं होता। उसकी जानकारी हमें पहले लग जाती। तो वी आर लैकिंग समवेयर, हम लैक कर रहे हैं अभी भी, ये हमको मानना पड़ेगा। आई नो द गवर्नमेंट इज बेस्ट, ये अभी तक की बेस्ट गवर्नमेंट है जब से हमारा देश आजाद हुआ है। बट स्टिल वी नीड टू वर्क अपॉन द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की स्किल्स पर हमको अभी भी काम करना बहुत जरूरी है और करना पड़ेगा। देन ओनली आवर कंट्री विल बी मोर सिक्योर। एंड वन क्वेश्चन फ्रॉम द पेरेंट्स, दैट आर यू रेजिंग अ सेल्फ सफिशिएंट किड? क्या आपने बच्चे को एक प्रॉपर तरीके से आप रेज कर रहे हैं? दिस इज माई क्वेश्चन टू एवरी पेरेंट। एंड बच्चों के लिए क्वेश्चन है कि वाई टू वेट टिल कॉलेज टू अर्न मनी? अब वो गॉन आर दोज डेज, वो दिन गए। अगर मैंने आपको एक वेबसाइट बनाना सिखा दिया, दैट टू विदाउट कोडिंग, तो क्या आप जाके मार्केट नहीं कर पाओगे खुद को कि मेरे को वेबसाइट बनानी आती है? गो टू एनी कैफे, गो टू एनी स्मॉल बिजनेसेस पीपल, कॉन्टेक्ट देम। ओके, ऑनलाइन कॉन्टेक्ट करो, मिलो जाकर अपनी सिटीज में, एंड गिव योर आइडिया कि सी, आपका ये बिजनेस है, इसको अगर ब्रांड तक ले जाना है तो एक वेबसाइट जरूरी है। आप वेबसाइट हम आपको चीप से चीप कॉस्ट पे बना कर देंगे, मैं आपको सिखा दूंगा, आप उनको सर्विसेज दो एंड टेक द वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिसाइड द अमाउंट, यू कैन डिसाइड। तो these kind of skills I am going to teach, and there is no need to wait till college to earn money.
This is one of the motto also. And this is the plan you already knows that 11 a.m. to 1 p.m. one batch morning, 5 to p.m. 5 to 7 p.m. another batch. Clear? So इसमें से आपको एक ही बैच ज्वाइन करना है बस. आप चेंज करेंगे तो मुझे इन्फॉर्म कर देना. Now, after this, after yes, Kanish Sangui has raised the hand. Please unmute yourself, beta Kanish. Sir, he is having summer camp on 5th, 6th, and 7th from morning 10 to 1 in school only. So Okay. can he join in the evening because he has selected the time from 11 to 1? You can change. You can change. I just give me the message on my personal WhatsApp. You can change the timing. No problem. No issue. Okay, okay. Okay. Now, अब आती है बात who are thinking about these children. ये जो एनजीओ में जो बच्चे होते हैं इनके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है. तो जब मैं आपको ये चीजें सिखा दूंगा तो अपनी अपनी सिटीज में जाके एटलीस्ट मंथली, मंथ में ट्वाइस और वंस, वेन एवर यू आर हैविंग टाइम, जस्ट गो टू एनी एनजीओ और एक आश्रम में जाओ और इन बच्चों के साथ बैठो और इनको भी एक स्किल सिखाना. क्योंकि हर एक बच्चे को सीखनी जरूरी है सारी चीजें, वो चाहे एक नॉर्मल फैमिली में रहता हो या किसी एक एनजीओ में रहता हो. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एम ऑफ माई कि हम आगे जाके एनजीओ के साथ भी कनेक्टेड. अभी मैंने किसी एनजीओ से कनेक्ट नहीं किया है. क्लियर? बट आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट फ्रॉम इंदौर सो डेट हम इन बच्चों को भी कुछ सिखा पाए. तो पहले आपका सीखना बहुत जरूरी है. जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए तो इनको भी जाके सिखाना कुछ कुछ. दे विल डेफिनेटली गोइंग टू प्रेज यू एंड यू विल ऑल्सो बिल्ड योर पोर्टफोलियो. आपका भी एक पोर्टफोलियो रेडी होगा. क्लियर? एंड ऑफ कोर्स आप जब ऐसा करोगे राइट फ्रॉम चाइल्डहुड तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपनी कंट्री के लिए. क्लियर? देर इज नो टाइम. नोबडी विल टेल यू टू डू समथिंग फॉर द कंट्री. ये खुद दिमाग में बिठाना पड़ेगा. यू नीड टू टेक द इनिशिएटिव फॉर योर कंट्री. क्लियर? जब तक हर एक इंसान, हर एक सिटीजन, हर एक बच्चा नहीं सोचेगा अपनी कंट्री के बारे में और अपने लिए और अपने जैसे और जो बच्चे हैं अपने फ्रेंड्स हैं उनके बारे में नहीं सोचेगा, सिर्फ अपना सोचेगा, मेरी कंट्री कभी डेवलप्ड नहीं हो पाएगी. वो हमेशा डेवलपिंग स्टेज पे रहेगी भले ही कितनी भी अच्छी गवर्नमेंट हो हमारे कंट्री में. क्लियर? तो अगर डेवलप्ड होना है लाइक यूएसए, चाइना, दुबई, इतना डेवलपमेंट चाहिए. दुबई क्या था? एक रेगिस्तान था. उसने अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर, आई नो उनके पास पैसा बहुत है ड्यू टू ऑयल, ऑयल रिफाइनरीज, बट पैसा होने के बाद भी दिमाग होना बहुत जरूरी है. उसको राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है. उन्होंने कर दिखाया. हर चीज ले लो, कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो, वहां पर है, सिंगापुर में है. इट इज नॉट देयर इन आवर कंट्री. है हमारी कंट्री में भी. आई एम नॉट सेइंग कि हम बहुत पीछे हैं, बट स्टिल वी नीड टू compete देम. अभी भी हमें उनके बराबरी में आने के लिए अपने आप को स्किल करना पड़ेगा. अभी स्टिल वी आर बिहाइंड देम. हम उनके पीछे ही हैं अभी. क्लियर? सो एक एम जरूर बनाना है. जब भी आपको टाइम मिले आसपास जहां आपको लगे कि ये बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो आपने सीखा है वो आप उनको सिखा देना जाके, और कुछ चार्ज मत करना. जस्ट कंट्रीब्यूट टू योर कंट्री. क्लियर? And these are testimonials where we have collaborated with Z Mount Litra and Podar International School. Some of the children are joining from there also. So these are the testimonials. And these are my contact details. Contact तो सबको पता ही है. Clear? And these are my team. This is my team. I am the founder and CEO. Nidhidhar is the co-founder and managing director. Neha. They both are absent right now. अभी नहीं है available कुछ कारण से. So right now I am only in the meeting. Thank you. Now अब आते हैं सेशन पर. क्लियर? अब मैं आपको कुछ चीजें सिखाने वाला हूं. क्लियर? सो सबसे पहले मैं आपको पहले तीनों चैटबॉट्स दिखा देता हूं कि कौन कौन से तीनों चैटबॉट्स आपको यूज करने चाहिए. पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं. क्लियर? जस्ट आई एम शेयरिंग द स्क्रीन एंड आई विल वाइंड अप द सेशन विद इन 15 to 20 minutes. आई विल नॉट टेक मोर देन दैट. क्लियर? एंड सेशंस विल बी बाइलिंगुअल. इंग्लिश में भी रहेंगे, हिंदी में भी रहेंगे, बाइलिंगुअल चलेगा. कहीं पे भी दिक्कत आए मुझे बता देना, लिख देना चैट में, सर प्लीज स्पीक इन हिंदी, मोर इन हिंदी, मुझे बता देना. कोई प्रॉब्लम नहीं है. सीखने के लिए लैंग्वेज जरूरी नहीं, कम्युनिकेशन होना जरूरी है. जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन.
सी दिस इज द चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म, एवरीबडी नोज दैट इट इज अ चैट बोर्ड। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, देन इट विल गिव यू द आंसर। क्लियर? तो वॉट एवर आई एम टाइपिंग हियर, तो दैट्स बेसिकली कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट। उसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, गिव मी नोट्स ऑन द टॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स फॉर क्लास सिक्स्थ साइंस। अब मैंने क्या किया, अब मैं यहां पर कुछ समझाता हूं, कुछ यहां पर समझना जरा पहले आप। मैंने यहां पर लिखा है गिव मी नोट्स ऑन द टॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स फॉर क्लास सिक्स्थ साइंस। अगर मैं इसमें कुछ चीजें हटा दूं तो मेरे पास प्रॉपर आंसर नहीं आएगा। पहले अपन चेक कर लेते हैं कि ये क्या देता है अपन को। क्लियर? गिव मी नोट्स ऑन द टॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स फॉर क्लास सिक्स साइंस। क्लियर? तो इसने सिक्स साइंस के अकॉर्डिंग मुझे नोट्स बनाकर दे दिए हैं, शॉर्ट नोट्स। क्लियर? इफ आई विल से गिव मी नोट्स ऑन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, अभी जस्ट वेट करते हैं, ये थोड़ा अभी पूरा अपना काम पूरा कर ले, देन अब यहां पर, अब हमने यहाँ पे क्लास मेंशन नहीं करी है। क्लियर? तो अब इसने क्या किया है, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी ट्रेंड कर दिया है ऊपर एक बार, यहां पर मैंने एक प्रॉम्प्ट डाल दिया था, क्लास सिक्स साइंस। क्लियर? तो ये मेरे, मैंने अभी क्या बताया था, ये प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है। एंड मैं इसमें जो डाटा डालूंगा ये इसको अपने आप को सेल्फ ट्रेन करेगा। अब जब मैंने एक बार सिक्स क्लास एंटर कर दिया है, तो नेक्स्ट टाइम भी जब मैंने इसमें नहीं डाला, मैंने क्या लिखा, सिर्फ ये लिखा गिव मी नोट्स ऑन न्यूट्रिशन एनिमल, तो ये समझ गया कि ये सिक्स क्लास की ही बात कर रहा है और किसी क्लास की बात नहीं हो रही। तो इसने ऑटोमेटिकली फिर से मुझे नोट्स दिए उसी क्लास के ऊपर। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस चैटबॉट। क्लियर? अगर अब आपको इसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो यू कैन डू द चेंजेस राइट फ्रॉम हेयर। आपने जहां पे भी जो लिखा है, तो जैसे आप यहां पर कर्सर लेकर आओगे, यहाँ पे एक पेंसिल का आपको ऑप्शन मिलेगा, एडिट मैसेज। तो यू कैन डू द एडिटिंग। आप यहाँ पे एडिट मैसेज कर दो। अगर ये आपका सेवन्थ क्लास का है तो यहाँ पे आप सेवन्थ कर सकते हैं। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग आपका डाटा चेंज हो जाएगा प्रॉपरली एंड विद इन नो सेकेंड। क्लियर? अभी आपका जो नोट्स आए वो सेवन्थ क्लास के अकॉर्डिंग आए। क्लियर? अब आते हैं मेन टॉपिक पे। सबने इस तरह की पैकेजिंग, मैंने आपको देखा हो, बताया था कि इस तरीके के हम मार्केटिंग स्किल्स हम सीखेंगे। क्लियर? हाउ टू डू दिस एंड हाउ टू डू मार्केटिंग लाइक दिस। दिस इज ब्लिस्टर पैकिंग। ब्लिस्टर पैकिंग क्या होती है, जैसे एक टॉय होता है, टॉय को क्या होता है, एक प्लास्टिक में पैक कर देते हैं एंड उसको वैक्यूम कर देते हैं अंदर से। दैट इज नोन एज ब्लिस्टर पैकेजिंग। यहां पर देखो वर्ड लिखा है ब्लिस्टर पैकेजिंग। अब ये मैंने बनाया कैसे, ये मैंने बनाया बस एक प्रॉम्प्ट से। किससे बनाया? एक प्रॉम्प्ट से। अब ये प्रॉम्प्ट मैंने इसको डिजाइन कर लिया था ऑलरेडी कि मेरी ब्लिस्टर पैकेजिंग कैसी होगी, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, एंड ऑफ कोर्स एक फोटो लगेगी। ठीक है? एक मेरी इमेज लगेगी। तो उसको चैट जीपीटी ऑटोमेटिकली एनालाइज कर लेगा कि उसमें मेरा फेस अंदर कैसे दिखने वाला है। तो मैं आपको प्रॉम्प्ट बताता हूँ, और ये प्रॉम्प्ट राइट नाउ मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगा ग्रुप में, सो दैट यू कैन ऑल्सो मेक सच काइंड ऑफ ब्लिस्टर पैकेजिंग एंड यू कैन थिंक इन फ्यूचर कि जब आपको मार्केटिंग करनी हो अपने प्रोडक्ट की तो आप इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर? तो वापस हम स्टार्टिंग पे आते हैं। व्हाट इज द प्रॉम्प्ट, यहां से हम उठाते हैं, ये है प्रॉम्प्ट। use this image to create a realistic full body toy action figure of me. The action figure should resemble me closely, including clothing and superhero style. The figure is displayed inside a plastic blister packaging as seen in traditional collectible action figures. Clear? To the side of the main figure, the include three distinct accessories. जो मेरी मेन फिगर है उसके साइड में, दोनों तरफ या एक साइड में भी इस तरह से आप कुछ इक्विपमेंट्स आपको दिखाने हैं। मेरी एक इमेज होगी बीच में यहां पर, और यहां पर तीन आपको इक्विपमेंट्स जो जो मैं मेंशन करूंगा वो आपको दिखाने हैं। क्लियर? तो यहां पर मैंने देखो हैमर किया था मेंशन, सुपर बाइक, हेलमेट, तो ये चीजें मैंने यहां पर ऑलरेडी लिख दी। यहां पर देखो मैंने यहां लिख दिया है सुपर बाइक होना चाहिए, मास्क होना चाहिए और हैमर होना चाहिए। मास्क की जगह वो हेलमेट भी दे सकता है। ठीक है? So to the side of the main figure include three distinct accessories, each presented in its own individual blister. और तीनों अपने अपने इंडिविजुअल ब्लिस्टर में होने चाहिए। यहां देखो अपने अपने इंडिविजुअल ब्लिस्टर के अंदर वो पैक्ड है। मास्क भी है, हेलमेट भी है,
हेलमेट उसने एक्स्ट्रा दे दिया, मास्क भी दिया है, हैमर भी दिया और सुपर बाइक भी दिया और एक मेरी इमेज दी है, और अपने अपने ब्लिस्टर में है तीनों, और मेरी मेन इमेज भी अपने ब्लिस्टर में ही है। क्लियर? तो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट तैयार कर दिया है। तो इसको हम कहते हैं बेटा, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं, somebody is saying something, just a minute. Excuse me, till what time the class will be there today till 6:10, 6:10 पे मैं कंक्लूड कर दूंगा। ओके नेहा मैम सेइंग सर इफ यू आउट फॉर ऑन हॉलीडेज फॉर अराउंड 12 days देन हाउ टू कोप अप। कोप अप के लिए कुछ नहीं है, रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेंगी, एंड आफ्टर मंथ ऑफ में आपका जो भी लॉस होगा मैं आपके हॉलीडेज पे मैं उसको कवर कर दूंगा। तो देर इज नो इशू इन दैट। आपके डाउट्स, इवन आपको लगेगा कि कुछ लाइव सेशंस लेना, आई विल कंडक्ट दैट ऑल्सो। सो आप कोई भी दिक्कत उसमें ये ना सोचें कि आपका कहीं से भी कुछ लॉस होगा, आई एम देयर ऑलवेज। एंड इसका पूरा प्रॉम्प्ट मैंने क्या किया, आगे भी इसमें चीजें लिखा है, इंश्योर नो इक्विपमेंट इज रिपीटेड इन द इमेज, कोई भी इक्विपमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। द ब्लिस्टर कार्ड शुड हैव अ बोल्ड एंड वाइब्रेंट वॉयलेट बैकग्राउंड। तो देखो वॉयलेट बैकग्राउंड आया पीछे, जैसा मैं चाहता हूं। अगर आपको ब्लैक चाहिए, रेड चाहिए, तो यू कैन जस्ट चेंज द स्पेलिंग, आपको बस स्पेलिंग चेंज करनी है। एंड एट द टॉप ऑफ द ब्लिस्टर कार्ड प्रोमिनेंटली डिस्प्ले द नेम। अब नेम में मैंने ऊपर क्या लिखा, एआई समर कैंप। अगर आपको अपना नाम लिखना है तो यहां से आप इसको चेंज कर देना। एंड डायरेक्टली बीनीथ इट इन अ स्मॉलर फॉर्म, आर यू रेडी। तो देखो यही लिखा है ना, यहां पर आप देख सकते हो, ऊपर लिखा होना चाहिए एआई समर कैंप और लिखा है नीचे आर यू रेडी। तो ये चीजें मैंने प्रॉम्प्ट में लिख दी है। एंड मेक श्योर द पैकेजिंग लुक्स प्रोफेशनली डिजाइंड with clear plastic casing enclosing both the action figure and the equipment, capture realistic lighting reflections on the plastic and physical texture. This should feel like an authentic retail ready action figure. तो ये prompt, इसको, इस स्किल को कहते हैं बेटा, ध्यान से समझना, इस स्किल को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्लियर? ये जो मैंने किया, ये जो मैंने लिखा, इसको कहते हैं बेटा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब होता है आप किसी एक फील्ड में उस पर एक पर्टिकुलर मशीन या पर्टिकुलर टूल या पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इंजीनियरिंग करते हैं, एंड उस पर रिसर्च करते हैं एंड उसको डिजाइन करते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रॉम्प्ट्स में डिजाइन करता हूं टू गेट द आउटपुट, इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्लियर? इसको कहते हैं हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एंड ये एक न्यू फील्ड है। ओके, दिस इज अ न्यू फील्ड इन द मार्केट, जो कि एक जॉब ओपनिंग हो चुकी है ऑलरेडी। इट्स अ न्यू फील्ड इन विच यू कैन हैव मेनी ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज। जो जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट बनाएगा उसको बहुत सारी कंपनीज, आईटीज कंपनीज हायर करने के लिए तैयार है ऑलरेडी। सो तो वेन एवर आई एम टीचिंग यू दीज थिंग्स, ये आपके पास सेव रहनी चाहिए, एंड इसमें आप चेंजेस करो। फॉर एग्जाम्पल अभी हम चेंज करते हैं, ठीक है? इसी प्रॉम्प्ट को मैं पूरा कॉपी करता हूं। क्लियर? आपके सामने एक नया ब्लिस्टर बनाते हैं, इसको मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूं। जस्ट कॉपी, कंट्रोल सी। ओके, और यहाँ चैट बोर्ड के अंदर कंट्रोल वी, शॉर्टकट कंट्रोल सी होता है। कॉपी करने के लिए क्या करना है आपको, सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस सी करना होता है, और जब आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी करना होता है। ये शॉर्टकट कीज आपको याद होनी चाहिए, और जब आप सेशंस पढ़ोगे, डेली अटेंड करोगे, तो मैं आपको डेली बार बार बोलूंगा तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। एक तो हम, मैं बोलता हूं कि अब मुझे सुपर बाइक नहीं सुपर कार चाहिए वहां पर, ठीक है? और मास्क की जगह हम से बोल देते हैं कि हमको स्केटिंग बोर्ड चाहिए, स्केटिंग बोर्ड एंड हैमर। ठीक है, हैमर इज फाइन। एंड अब उसकी पैकेजिंग का कलर चेंज कर दें, इंश्योर नो इक्विपमेंट इज रिपीटेड इन द इमेज, बाकी सब चेंज रखो। अब वाइब्रेंट वॉलेट की जगह हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, रेड बैकग्राउंड कर देते हैं। ओके, रेड बैकग्राउंड। तो इतना इतना आप चेंजेस करो अपने आप से तो हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बोलेंगे एआई समर कैंप की जगह हम लिख देते हैं एआई फ्यूचर टेक स्किल्स। इस तरह से हमने लिख दिया, एंड डायरेक्टली बीनीथ हम उसके नीचे लिखेंगे लेट्स लर्न। यहां पे भी चेंज कर देते हैं हम, लेट्स लर्न। क्लियर? कैपिटल में लिखोगे तो कैपिटल आएगा, लोअर लोअर केसेस में लिखोगे तो लोअर केसेस में आएगा, जैसा लिखोगे वैसा आएगा। क्लियर?
एंड मेक श्योर इट इज, एंड अब आपको एक इमेज इसमें देनी है, एक इमेज देनी जरूरी है आपकी, ये आपको ध्यान रखना है। प्रॉम्प्ट तो आपका रेडी है, प्रॉम्प्ट मैं आपको एज इट इज अभी मैं दे दूंगा व्हाट्सएप पर। इसको आप याद कर लेना, रीड करना बार बार, जो चेंजेस करने हैं करना, बट एक इमेज देनी बहुत जरूरी है। अब इमेज के लिए मैं जाऊंगा अपनी पिक्स में, अपनी इमेज लगाओ। क्लियर? अपनी ही कोई इमेज लगाएंगे अपन। तो लेट्स टेक दिस, कोई भी इमेज, एंड इमेज शुड बी क्लोज वन, थोड़ी सी पास में, दूर वाली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी पास होनी चाहिए, तो वो उसको एनालाइज कर पाएगा अच्छे से। क्लियर? तो यही वाली मुझे लग रही है जो मेरी एकदम क्लोज है। तो आप नहीं तो सेल्फी ले लेना, या फिर आपके पास ऑलरेडी कुछ, जब भी आप कहीं घूमने जाते हो तो बहुत सारी पिक्चर्स होंगी, तो जो क्लोज वन होगी और सिंगल होनी चाहिए इमेज, डबल, दो और कोई लोग नहीं खड़े होने चाहिए उसमें, ये आपको ध्यान रखना है। और अब इस पे अपन हिट एंटर कर देते हैं। लेट्स सी व्हाट प्रोडक्ट विल कम। इट हैज स्टार्टेड जनरेटिंग, सो वी विल सी। तब तक मैं आपको ये प्रॉम्प्ट वहां पर भेज देता हूँ, सो डैट आपको कभी भी कुछ चेंजेस करने हो तो आप कर सकते हैं। क्लियर? मैंने आपको प्रॉम्प्ट भेज दिया है, यू कैन यूज आफ्टर द सेशन। और इसी ग्रुप में अपने ब्लिस्टर इमेजेस बना के आज जरूर भेजना। ठीक है? अपने ब्लिस्टर इमेजेस बना के जरूर भेजना आज। तो अब वापस आते हैं अपन चैट जीपीटी पे, किसने कुछ बनाया कि नहीं बनाया देखते हैं। ओके, इसमें लिखा है लॉट्स ऑफ पीपल आर क्रिएटिंग इमेजेस राइट नाउ, सो दिस माइट टेक अ बिट, वी विल नोटिफाई यू व्हेन योर इमेज इज रेडी। सो नोटिफिकेशन आ जाएगा, प्रोसेसिंग चल रहा है, बिकॉज राइट नाउ हो सकता है ट्रैफिक ज्यादा हो। क्लियर? तो ट्रैफिक की वजह से इट इज टेकिंग टाइम। विच ऐप शुड बी यूज? नो ऐप, इसमें कोई ऐप यूज नहीं होगा बेटा, चैट जीपीटी पे आना है आपको। इस पे आयुष्मान, आपको चैट जीपीटी ही यूज करना है। ये प्रॉम्प्ट एज इट इज जो मैंने ग्रुप में डाला है, जो मैंने ग्रुप में डाला है प्रॉम्प्ट, ये आपको एज इट इज कॉपी करना है, और आपको इसमें जो जो चेंजेस करने हैं वो आप चेंजेस कर सकते हैं। ओके, somebody is asking in the WhatsApp that, hi sir, what are the timings and for class and days? Okay, let me write in the chat only, and I am announcing also. Just a minute, Kanish. Time classes will be from throughout the week, Monday to Saturday, and अगर बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, देन संडे विल बी डाउट सेशन, अदरवाइज क्लासेस विल बी Monday to Saturday. Okay, any one batch you can join, either 11 to 1 p.m. morning, or evening 5 to 7 p.m. Clear? So I hope on WhatsApp when someone has asked me, timings are clear. Yes, ChatGPT 4, it is okay. ChatGPT 4 पे आप कर सकते हैं. Now somebody was asking, raising hand. Kanish Sango, yes, you can ask the question. Sir, just want to ask that chat GPT is मतलब अगर हमारा पेड सेशन पेड वर्जन है तो अच्छा है, बट अगर हमारा पेड वर्जन नहीं है तो प्रॉब्लम्स हो सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फ्री फ्री, फ्री में ही सारा फ्री काम वाला करना है ठीक है। मैंने, नो प्रॉब्लम। ओके ओके। सी इट इज शोइंग अगेन, अगर जैसी इमेज बन जाती है मैं आपको शो कर दूंगा, बट मैं बता दूं आपको ये कैसी बनने वाली है। ये इसी टाइप की बनेगी जो मैंने बनाई है ऑलरेडी। क्लियर? जो इस तरह की मैंने आपको बनाई है, ये इसी टाइप का पैकेट बनकर आएगा, मैं आपको पोस्ट कर दूंगा जैसी ये बन जाएगी। या एक और सैंपल मैं आपको दिखा सकता हूं, ये जैसा मैंने बनाया था। तो इसे कहते हैं ब्लिस्टर पैकेजिंग। क्लियर? अब कैप्सूल वाली मैं आपको सिखाऊंगा कल। ये कैप्सूल के अंदर आप बंद हैं, ओके, एंड आपकी टी शर्ट का कलर, जीन्स का कलर, शूज का कलर आप डिसाइड करेंगे। हाथ में आपको बैंड पहनना है, रिस्ट वॉच, स्पोर्ट्स वॉच पहननी है, गॉगल्स पहनने हैं या नहीं पहनने हैं, स्पेक्स होने चाहिए, हेयर का कलर कैसा होना चाहिए, आपकी टी शर्ट पे क्या लिखा होना चाहिए, इसका प्रॉम्प्ट मैं आपको कल दूंगा, बिकॉज सेशन इज गोइंग वेरी लेंदी। सो इसका मैं आपको देखूंगा कल, प्रॉम्प्ट मैं सिखाऊंगा कल इसको। एंड इसका देख लेते हैं एक बार अगर बना है क्या नहीं, स्टिल इट इज प्रोसेसिंग। सो apart from this, if you are having any kind of एक बार मैं इसको ऐसा करता हूँ, एक बार फिर से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, लास्ट अपन देख लेते हैं एक बार ट्राई करके, अगर ये कर रहा है तो। समटाइम्स हो जाता है ऐसा। और फिर से फटाफट एक हम इमेज अपनी लगा देते हैं, माइट भी अगर कुछ हो पाए अभी जल्दी तो ठीक है, नहीं तो आपको जैसे ये जनरेट होगा मैं आपको ग्रुप में ही शेयर करूंगा कि जो मैंने बनाया वही आया।
जो जो मैंने बोला था उस पे लिखा हुआ भी वही आएगा। नो, जब तक ये पूरा नहीं होगा प्रोसेस तब तक ये दूसरा प्रॉम्प्ट नहीं लेगा। होता है ट्रैफिक, क्योंकि एवरीबडी इज यूजिंग नाउडेज चैट जीपीटी, बहुत ही हाई लेवल पर यूज हो रहा है। बिकॉज ये गिबली इमेजेस भी बनाता है, इस तरह की ब्लिस्टर इमेजेस भी बना रहा है, तो एवरीबडी इज यूजिंग नाउ एंड देन। तो जैसे ये पूरा हो जाएगा आई विल शेयर विद यू इन द ग्रुप ओनली। एंड मैं थोड़ी देर बाद ग्रुप को भी ओपन कर दूंगा, सो डेट आप भी अपना बनाकर इस तरह से शेयर कर दो वहां पर सारे प्रोजेक्ट्स। एक तरीके से प्रोजेक्ट मैंने आपको आज का होमवर्क दे दिया है। सो अब बाय वन एवरी वन कैन आस्क डाउट्स, सो डेट आफ्टर सेशन आपके पास कोई डाउट्स ना बचे। एंड जिन्होंने एनरोल नहीं करवाया है दे कैन ऑल्सो एनरोल। एंड वन मोर थिंग, जो गूगल फॉर्म पर आपने जीमेल आईडी डाली है, क्लियर, जो भी गूगल फॉर्म पर आपने पे करने के बाद गूगल फॉर्म जो भरा है उसकी जो जीमेल आईडी है उसी पर मैं आपका कैनवा एक्टिवेट करने वाला हूं। आपको एक इनविटेशन आएगा उसी जीमेल पर, उसको आपको एक्सेप्ट करना है, बस उस पर क्लिक करना है एक्सेप्ट बटन, बस आपका वो कैनवा प्रो एक्टिवेट हो जाएगा। आपको और कुछ नहीं करना है एंड यू कैन एंजॉय द फीचर्स ऑफ कैनवा प्रो। जैसे जैसे मैं आपको सिखाऊंगा डेली बेसिस पे, आपको उस तरीके से आपको उस पे कैनवा पे जाना है और आपको सीखना ही है सारी चीजें। डेली एक सेशन, शॉर्ट सेशन कैनवा का जरूर होगा। दिस इज डन, क्लियर। अब एक मितेश जी, मैं आपका बस एक ले रहा हूं क्वेश्चन अभी। एक चीज और मुझे बतानी है कि मैं थोड़ा सा रैप अप कर रहा हूँ, रिवाइज रिवाइज कर रहा हूँ सारी चीजें। नो गुड मॉर्निंग, नो गुड नाइट, पर्सनल मैसेजेस मत करना। आपको जिस पर जो जीमेल आईडी आपने कैनवा की दी है, मतलब जो गूगल फॉर्म भरा है, उसी पे मैं एक्टिवेट कर दूंगा। अगर अगर आपको लगता है कि नहीं उस जीमेल आईडी पे एक्टिवेट नहीं करना है तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर देना। मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर देना कि प्लीज एक्टिवेट कैनवा प्रो ऑन दिस जीमेल आईडी। और व्हाट आई कैन डू, आई कैन गिव यू अ गूगल फॉर्म, आप उस पर भर देना, या कोई भी एक मैं आपको फॉर्म दे दूंगा तो आप उस पर जीमेल आईडी भर देना। मैं आपको आज रात तक वो दे दूंगा, तो जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे कि आपका मैसेज इनविटेशन वाला वो किस जीमेल आईडी पे आया है। क्लियर। तो मैं एक छोटा सा गूगल फॉर्म बना दूंगा, उसको आप भर देना आज, तो आपका सबका कैनवा प्रो उस पे 1 ईयर के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। एंड यू कैन यूज अनलिमिटेड टाइम, आपको जितनी देर के लिए यूज करना करो। जितनी चीजें, इमेजेस हो, आपकी डिजाइनिंग हो, जो जो मैं सिखाऊंगा आपको उसको अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट वीडियोस भी हम उससे बनाएंगे। क्लियर। मितेश शाह, you can unmute yourself and you can ask the doubt. गुड इवनिंग सर, थैंक यू वेरी मच। Please open the video if you can. अगर आप ओपन कर सकते हैं वीडियो, सर it श्योर, will be very good for us. Otherwise, no problem. You can continue. आई डू इट। Oh, good evening, sir. Good evening. या गुड इवनिंग। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका देख के, तो थैंक थैंक यू, यू वेरी थैंक यू मच। सर। हाँ, मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, ये चीज मेरे अंदर कैसे आती है मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि मैं पिछले 14 ईयर से एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ। मैंने बच्चों के साथ ही अपना टाइम पूरा स्पेंड किया है। जब मैं 12th पास आउट हुआ था 2008 में, क्लियर, देन आई डिड माई डिग्री। 2011 मेरी डिग्री ओवर हो गई। एंड फ्रॉम 2012 आई एम इन टीचिंग इंडस्ट्री ओनली। 2012 से लेके मैं टीचिंग इंडस्ट्री में हूँ। एंड राइट नाउ आई एम एकेडमिक कोऑर्डिनेटर इन आइडियल इंटरनेशनल स्कूल इंदौर। 6 to 12 मेरे अंडर में रहता है। मेरे बच्चे जो भी हैं उनको पूरी उनकी प्रॉपर टीचिंग मेथोडोलॉजी को चेक करना, टीचर्स की एंड उन बच्चों की पूरी देखरेख करना, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब मैं बच्चों के बारे में सोचता हूं और उनको ऑब्जर्व करता हूं, स्किल्स पे काम नहीं हो रहा है स्टिल। मेरे स्कूल में भी मैं अगर बात करूं, जो स्किल एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए इस एज, पर्टिकुलर एज में, वो नहीं है, उस पर हम काम कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट अदर स्कूल्स एंड व्हाट अबाउट एनजीओज जहां वो बच्चे जिनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। एंड व्हाट अबाउट वो जो मुंबई में जो स्लम एरियाज में रहते हैं, जब तक उन तक भी हम नहीं पहुंचेंगे एक अफोर्डेबल, मैं नहीं कहता कि उनसे मैं कभी चार्ज करने की सोचूं, बट एटलीस्ट कोई उनको भी जाकर सिखा पाए। तो ये मेरा एक मोटो है। तो ये हमेशा रहेगा। और बच्चों के लिए हम ऑफ कोर्स हमेशा मैं सोचूंगा कि कुछ नया लेकर आए हमेशा, एंड दे कैन लर्न दीज स्किल्स। थैंक यू। यस, प्लीज कंटिन्यू सर नाउ। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपके जो जो आप बताया, जो जो कर रहे हो, जो कॉज के लिए आप कर रहे हो, हाँ जी। वेरी गुड, रियली अप्रिशिएट। एक है अभी के ग्रुप में आपने बोला बच्चे लोग को अपना जो भी चैट जीपीटी से बना के डालना है, हाँ हाँ।
तो वो कभी डालना है, क्योंकि ग्रुप आप एडमिन को सी उसका बोलना मैं है। उसका हम ये रखेंगे सर कि टाइमिंग्स रहेगा कि जैसे मेरा जो लास्ट सेशन होगा वो इवनिंग में खत्म होगा 7 PM। तो बच्चे ने अगर चाहे मॉर्निंग बैच ज्वाइन किया हो या इवनिंग बैच ज्वाइन किया हो, वो रात को 12 बजे तक वो कर ले, या कल सुबह उठ के भी करेगा, क्योंकि बाई चांस देखो दीज आर समर हॉलीडेज। अब पेरेंट्स का होता है कि मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूं, उनको वाटर पार्क ले जाएं, उनको घुमाएं फिराएं जो भी है। तो इसके लिए कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी पर्टिकुलर टाइम पे करना है। अगर अगर सब लोग मुझे प्रॉमिस करते हैं कि अनड्यू मैसेजेस नहीं आएंगे, तो मैं हमेशा उस व्हाट्सएप ग्रुप की मैसेजेस को ऑन कर दूंगा। आप कभी भी प्रोजेक्ट करो, बट कभी भी कुछ भी ऐसी चीज पोस्ट मत करना जिससे बाकी लोगों को दिक्कत हो। एंड और टाइमिंग से बचना, रात को 12 बजे के बाद ना करें, क्योंकि कुछ लोग सो रहे होते तो उनके वाइब्रेट होते हैं मोबाइल। एंड कभी कभी किसी का अगर डिट्स म्यूट ना हो या साउंड वाले मोड में हो, तो फिर आवाज भी आती है बार बार मैसेजेस की। तो 12 बजे के बाद ना करें, क्योंकि 12 बजे तक तो हर कोई जगता है आजकल। मूवीज है, नेटफ्लिक्स है, आईपीएल है। बिफोर 12 PM एवरीबडी कैन पोस्ट, नो प्रॉब्लम, बट प्रॉमिस एवरीवन, nobody विल सेंड एनी काइंड ऑफ अनड्यू मैसेजेस इन द ग्रुप। तो मैं हमेशा उसकी चैट को ओपन करूंगा। सर क्या करिए, 2 दिन का एक ट्रायल बेसिस पे रखिए, हाँ, देखिए कैसा रिस्पॉन्स जा रहा है। बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल। फिर आपके टाइम चेंजेस करके उसको ओनली हाँ, एडमिन में कन्वर्ट कर फिर वो दीजिए। टाइम में मुझे थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, बट प्लीज आप लोग अगर प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करोगे, ये चीजें आपको अभी से सिखाई जा रही हैं, सीखो। एंड इतना ग्रो करोगे, यू कैनॉट इमेजिन। एंड मैं आपको बताऊं, आई एम फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड। मेरा कोई भी कंप्यूटर डिग्री नहीं है, बट स्टिल आई एम टीचिंग, बिकॉज मैंने डेडिकेशन से सारी चीजें सीखी हैं। ये कैनवा हो, वीडियो एडिटिंग हो, कुछ भी हो, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। ट्रांसफॉर्मेशन आप आराम से ला सकते हो, इट्स इन योर माइंड, कुछ भी हो। क्लियर? सो एनी अदर डाउट? ओजस, यस यू कैन आस्क ओजस। Sir, we have to make it in phone or in laptop. सी बेटा, जितने कोई भी ऐप हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो या कोई भी एआई टूल हो या कैनवा हो या कुछ भी हो, उसके सबसे ज्यादा फीचर्स एक लैपटॉप पर ही दिखते हैं। फोन में लिमिटेड फीचर्स दिखते हैं। एंड फोन में आपका स्क्रीन जो स्पेस होता है वो कम होता है, आपकी स्ट्रेन बहुत ज्यादा था आईज के ऊपर। तो अवॉइड फोन। अगर लैपटॉप और मोबाइल, आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, आईपैड अगर आपके पास है तो यूज दैट, उसको यूज करें। बट ड्यू टू सम रीजन अगर आपके पेरेंट्स उसको यूज कर रहे हैं, बिजी हैं, तो आप तब मोबाइल पे कर सकते हो। अदरवाइज आई विल सजेस्ट डू ऑन लैपटॉप और डेस्कटॉप, उसके ऊपर ही करें आप लोग। Yes, sir. ओके कनिष्क, प्लीज कनिष्क आज द डाउट। Sir, where will we get the recordings? रिकॉर्डिंग्स अगेन आई एम शोइंग यू बेटा, एक आपको एक्सेल शीट मिलेगी। क्लियर? एक एक्सेल शीट मिलेगी, मैं आपको शो कर देता हूं अभी। उसकी लिंक आएगी आपको बेसिकली। क्लियर? वो लिंक होगी आपको इस तरह की एक्सेल शीट की, पार्टिसिपेंट्स कैन सी, इस तरह की आपको एक्सेल शीट मिलेगी। क्लियर? इस पे मैं मेरे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जैसे आपके फादर मदर हैं, दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, वो इस तरह के लोग मेरे से ये सब चीजें सीखते हैं। क्लियर? उनका टाइमिंग्स, उनका पैकेजेस सब अलग है। तो इनको मैं इतने टॉपिक्स ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं, उनको यहां तक हम सिखा चुके हैं। तो उनकी लिंक्स इस शीट पर, टॉपिक के सामने लिंक होती है, तो वो लोग इस लिंक को क्लिक करते हैं, वो लिंक से वो रीडायरेक्ट हो जाते हैं यूट्यूब चैनल पर। वो यूट्यूब चैनल उन्हीं लोगों को दिखता है जिनको एक्सेस दिया हुआ है, क्योंकि इसमें सारी वीडियोस अनलिस्टेड होती हैं। पब्लिक नहीं किया हुआ है मैंने, प्राइवेट है, अनलिस्टेड है। जो सब्सक्रिप्शन लेता है बस उसी को वीडियोस दिखती हैं। तो आप लोग बिल्कुल ना सोचें कि बाकी लोग, बाकी बच्चे फ्री में सीख रहे हैं। नो, जो जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं कम्युनिटी में, उन्हीं के पास ही एक्सेस रहेगा। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, डू नॉट शेयर विद दीज लिंक्स टू एनीवन। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करो, नो प्रॉब्लम। इवन रिलेटिव तक भी जाते हो तो भी आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। आप उनको भी बोलो कि वो एनरोल कराएं तभी सीखें। डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ दीज थिंग्स जो आपकी ग्रोथ में हिंडर हो जाए, क्योंकि मैं फिर उस जीमेल आईडी को एक्सेस देना बंद कर दूंगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, सिर्फ एक ही जीमेल आईडी पे आपको एक्सेस मिलेगा, उसी जीमेल आईडी से बार बार ये आपकी लिंक ओपन होगी। क्लियर? यस कनिष्क, कंटिन्यू योर डाउट।
Sir, where you will send the link to open that Excel sheet? आप आफ्टर टुमारो सेशन, कल जब एक सेशन हो जाएगा आपका, उसके बाद आपके पास आएगी ये लिंक। आज की On the रिकॉर्डिंग, WhatsApp group? हाँ, ऑन व्हाट्सएप ओनली, व्हाट्सएप पे ही आएगा सब कुछ। और जो गूगल फॉर्म में आपने जो जीमेल आईडी लिखी है, उसी पे ही मैं एक्सेस दूंगा आपको। क्लियर? तो उसी जीमेल आईडी से ही लॉग इन करना, एंड फिर उसी से आप रीडायरेक्ट हो जाओगे ऑटोमेटिकली यूट्यूब चैनल पर। एंड मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ। चलो, अब मैंने आपको मैंने बिना कोडिंग के एक लास्ट है अपना ये, देन आई विल वाइंड अप द वेबिनार। क्लियर? चलो, अब हम दिखाते हैं आपको अपनी वेबसाइट। इज माई स्क्रीन विजिबल? सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? प्लीज टाइप यस इन द चैट। ओके, थैंक यू। सो दिस इज द वेबसाइट विदाउट कोडिंग, आई हैव डिजाइन ऑन माई ओन। खुद से मैंने डिजाइन करी है। इसके अगर आप फीचर्स देखो, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो एनरोल विद अस, तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा मेरे व्हाट्सएप पर। देन हम यहाँ से आप मेरे से चैट कर सकते हो, एंड वहां से आप एनरोल कर सकते हो मेरे किसी भी प्रोग्राम में। क्लियर? तो ये सारी इमेजेस मेरे पास, जहां जहां मैं किसी भी स्कूल्स में जाता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं वहाँ पे फोटोग्राफी और हमारे फोटो सेशंस होते हैं। तो ये सब चीजें मेरे पास ऑलरेडी थी, तो उसको मैंने इस वेबसाइट पर डाला। क्लियर? इसमें कोई भी कोडिंग नहीं लगी। विद इन 2 आवर्स मैंने ये पूरी वेबसाइट डिजाइन कर ली अपने समर कैंप के लिए। दीज आर माई ट्रेनिंग सेशंस। जितनी इमेजेस डालनी डालो, इवन वीडियोज ऑल्सो, इवन वीडियोज विद साउंड आई हैं इसके अंदर। क्लियर? यहाँ पे मैं आपको चला के दिखाता हूँ वीडियो। क्लियर? ये बच्चों ने के लिए मैंने एक सेशन लिया था जी माउंट लिटरा में जाके। सो इस तरीके से सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। इस तरह की डायनेमिक वेबसाइट विदाउट कोडिंग आप बना लो, एंड इसको सेल कर सकते हो आप। क्लियर? कैसे सेल करना है, कैसे आपको डोमेन, अभी मैंने डोमेन लिया नहीं है, कैसे आपको डोमेन लेना है और कैसे आपको होस्टिंग देनी है, वो सारी चीजें आपको सिखा दी जाएंगी। क्लियर? सो लाइक दिस you are going to learn many things. So best of luck for your futuristic skills, जो आपको आगे बहुत काम आने वाली है। क्लियर? So if everyone is ready, please type ready in the chat. Yes, you are all are ready. Ready in the chat लिख दो सब। कल से हम स्टार्ट कर, इवन हमने आज से ही स्टार्ट कर दिया है। टाइप रेडी इन द चैट। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं और जो भी मेरे फ्लायर्स, मैं जो भी आपको कभी मार्केटिंग के लिए बोलूं, तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भेजना, सो डेट उनका भी कुछ फायदा हो, वो भी ये सब चीजें सीख पाए, स्किल्स। क्लियर? याद रखना हमेशा एक चीज, कभी माइंड में फीलिंग ये मत लेके आना कि मेरे को सारी जो चीजें सीख रहा हूँ बस मुझे ही आनी चाहिए, वो किसी और को नहीं आनी चाहिए। ग्रोथ नहीं होगी, ये ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। कभी ये माइंड में थॉट मत लाना कि अगर मैंने ये चीज किसी और ने सीख ली, यार वो तो मेरे से आगे निकल जाएगा। अरे कहाँ निकलेगा आगे? जो आपकी नॉलेज है वो आपके पास रहेगी, जो आपकी डेडिकेशन है, जितना आप अपने लिए मेहनत करोगे वो आपके लिए काम आएगा। क्लियर? वो किसी और के लिए काम नहीं आएगा, ये चीज हमेशा याद रखना। क्लियर? क्योंकि जब आप एनजीओज में भी जाओगे सिखाने, तो आपको ये रखनी पड़ेंगी चीजें आपको माइंड में कि मैं इनको कुछ देने आया हूं, और आप जितना दूसरों को दोगे आपको उसका 10 टाइम्स वापस मिलेगा हमेशा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है यूनिवर्स से। जितना आप लोगों को दोगे उतना आपके पास रिटर्न आएगा, वो भी 10 टाइम्स। 1 टाइम भी नहीं, 2 टाइम्स भी नहीं, 10 टाइम्स। तो हैव सम फीलिंग ऑफ गिविंग ऑलवेज। कभी ये मत सोचो कि नॉलेज मेरे तक ही रहनी चाहिए, उसको हमेशा स्प्रेड करो, एंड अपनी कंट्री के लिए वर्क करना हमेशा। डू नॉट ड्रेन योर सेल्फ, कि हम ब्रेन ड्रेन सारी चीजें सीख कर, पूरी स्किल सीख कर, और धीरे से हम बाद में दूसरी कंट्री के लिए वर्क करने लग जाए। नो, वर्क फॉर योर कंट्री, मेक योर कंट्री मोर स्टेबल एंड प्रोग्रेसिव, सो डैट हम उस सबसे नंबर 1 पर रहें। क्लियर? ये हमें दूसरी कंट्रीज के बच्चे और लोगों से सीखने की जरूरत है। एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूं। चाइना में एक मेरा फ्रेंड है, वो चाइना गया था घूमने कुछ बिजनेस मीट पर। लास्ट इसके कहानी बता के मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ वेबिनार को।
तो उसने देखा कि रात के 3 बजे भी वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं। तो उसने एक पूछी कहानी, जो वहां पे उस कंपनी का जो ओनर था, कि वाई दीज वर्कर्स आर स्टिल वर्किंग, जबकि टाइम तो ओवर हो चुका है। तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि ये जो वर्कर्स हैं, ये इसलिए घर नहीं जा रहे क्योंकि एक मशीन खराब हो गई है, और इनको नींद तब तक नहीं आएगी जब तक वो मशीन को ठीक नहीं कर लेंगे। भले ही वो कल लेट आए, लेट ज्वाइनिंग करें, बट वो जो 5 लोग अभी मशीन को ठीक कर रहे हैं, वो जब तक उसको ठीक नहीं कर लेंगे तब तक वो नहीं जाएंगे। वो खुद से है, किसी ओनर या बिजनेस के, जो भी कंपनी का ओनर है उसने नहीं रोका है, वो खुद से अपनी मन से रुके हुए हैं। दिस काइंड ऑफ डेडिकेशन द पीपल आर हैविंग इन दैट कंट्री। दैट्स वाई दैट कंट्री इज मोर प्रोग्रेसिव एंड मोर एडवांस फ्रॉम आर कंट्री। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं आपके अंदर चीजों को जगा रहा हूं। सोचने की जरूरत है, अभी हमको अपनी स्किल्स पे काम करने की जरूरत है। Okay, that's all from my side. If anybody want to say something, most welcome. Otherwise, I am ending the webinar. And जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, they can enroll today. Okay, so that उनका भी एक्टिवेट कर दें हम कैनवा, और टाइमली वो लोग भी अपने सेशंस को कर ले ज्वाइन। Anybody wants to say something? Raise your hand. Otherwise, I am ending the webinar. Okay, thank you everyone. Enjoy this journey, new journey, and we are going to learn so many things. Thank you.